Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge IQ with Shiva. Our today's topic is Schedules of Indian Constitution. There are 12 schedules in our Indian Constitution, but when our Constitution made, there were 8 schedules. जब हमारा Constitution बना था तो तब 8 schedules थी, but now there are 12 schedules. अब जो Constitution है उसमें 12 schedules हैं. First schedule is list of states and union territories, and the second schedule is lists the salaries of officials. The third schedule is oaths and affirmations of offices, and the fourth schedule is allocations of seats in the Rajya Sabha, and the fifth schedule is administration and control of scheduled areas and tribes, and the sixth schedule is administration of tribal areas Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, and the seventh schedule is the union, state and concurrent list of responsibilities, and the eighth schedule is the languages, and the ninth schedule is validation of certain acts and regulations, and the third schedule is anti-defection provisions for the members of parliament, and the 11th schedule is Panchayati Raj, and the 12th schedule is municipalities. Now we will discuss in detail. First schedule is list of the states and union territories. यानी कि means to say that it deals with the state and union territories. यानी कि जो हमारी state और union territory की जो भी list होगी वो होगी हमारी first schedule में. And also about their changes. It is also about their changes. ये उनके changes से भी related है. Then we have the sixth schedule. Sixth schedule deals with the salaries of the officials as like president, the judges of Supreme Court and High Court and CAG. यानी कि जो हमारे president है, जो CAG है and judges है, उन सभी की जो salaries है वो उसके साथ deal करती है हमारी second schedule. Second schedule सबकी जो salaries है उनके साथ deal करती है and it is divided into 5 parts. जो हमारी second schedule है वो deal करती है 5 parts के साथ. Part 1 जो part A है it deals with the provision as to the president and governor of state. यानी कि state के जो governor है और जो president है उनकी provision के साथ deals करती है. Part B is repealed and part C is deals with provision as to the speaker and the deputy speaker. Speaker और deputy speaker के साथ जो deal करती है वो करता है part C and part D deals with the provision as to the judges of Supreme Court and High Court. Supreme Court और High Court के judges के साथ जो deal करता है वो करता है part D and part E deals with the provision as to the CAG. So it is divided into 5 parts. First deal करता है president के साथ, second is repealed, third deal करता है speaker और deputy speaker के साथ, D करता है judges के साथ and E करता है provision as to the CAG, जो CAG है उनके साथ. Then we have our third oaths and affirmations of offices. Means to say that कौन किससे oath लेगा, शपथ कौन किससे लेगा और किसका कैसे affirmation होगा, ये सभी डील करता है हमारा जो हमारी third schedule है वो. Forms oaths and affirmations of offices for elected officials including judges. यानी कि इसके अंदर जो जजेज हैं वो भी आ जाते हैं कि जजेज की जो ओथ्स है उनका जो अफर्मेशन है वो कैसे होगा, वो सब यही डील करता है. देन वी हैव आवर थर्ड वन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. यानी राज्यसभा में जो सीट्स हैं उनका जो एलोकेशन है वो कैसे होगा वो डील करता है वो डील करती है हमारा फोर्थ शेड्यूल. देन वी हैव आवर फिफ्थ वन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब. शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका जो कंट्रोल है वो कैसे होगा वो सब डील करता है हमारा जो हमारी फिफ्थ शेड्यूल है उसको डील करती है. देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज एज लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इट इज सिमिलर टू फिफ्थ. ये फिफ्थ के साथ जो है सिमिलर करती है बट देर आर सम पर्टिकुलर स्टेट. इसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को रखा गया है एज लाइक असम, मेघालय, Tripura and Mizoram. And the question can be asked as like how many states are included in the 6th list. जो हमारे 6th शेड्यूल है उसमें कितने
जो स्टेट हैं उनको इंक्लूड किया गया है. सो देयर आर 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इनके ट्राइबल एरियाज को इसके अंडर 6th शेड्यूल के अंदर देखा जाएगा. देन वी हैव 7th वन, द यूनियन स्टेट एंड को करंट लिस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी कि जो यूनियन की स्टेट की जो लिस्ट है, जो को करंट लिस्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, उन सबको यहाँ पर देखा जाता है. एंड इन यूनियन लिस्ट वी हैव 97 नंबर एंड इन स्टेट लिस्ट वी हैव 61 आइटम्स. बल्कि जो स्टेट है इसमें हमारे पास पहले 66 आइटम्स थे. एंड इन को करंट लिस्ट वी हैव 52 आइटम्स, बट पहले इसमें 47 लिस्ट थी. एंड द एजुकेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ को करंट लिस्ट. जो एजुकेशन है वो भी पार्ट है को करंट लिस्ट का. देन वी हैव द लैंग्वेजेज. द लैंग्वेजेज इज इन द 6th शेड्यूल एंड देयर आर 22 लैंग्वेजेज. 22 लैंग्वेजेज हैं जो हमारे जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर देयर आर 22 लैंग्वेजेज. देन वी हैव आर 9th वन. जो हमारी 9th शेड्यूल है वो ऐड किया गया है थ्रू एन अमेंडमेंट. इसको अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया गया है. एंड द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट इन दिस वाज मेड इन 1950. इट वाज एडेड थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट. इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू शेड्यूल्स में ऐड किया गया था. वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो एक्ट्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको इसमें रखा गया है. देन वी हैव a 10th schedule and the name of 10th schedule is anti-defection provisions for the members of parliament. यानी कि जो एंटी डिफेक्शन प्रोविजन है जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनके लिए इसको इसमें रखा गया है हमारी 10th शेड्यूल में. देन वी हैव आर 11th शेड्यूल विच इज पंचायती राज. पंचायती राज इज रिलेटेड टू द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायती राज. यानी कि जो पंचायती राज है इससे रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो सारे आते हैं हमारे 11th शेड्यूल में. एंड इट वाज एडेड थ्रू 73rd अमेंडमेंट. इसको 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है हमारे शेड्यूल्स में. पंचायती राज वाज एडेड थ्रू 73rd अमेंडमेंट इन 1992 एंड इट हैज 29 मैटर्स. जो पंचायती राज है इसमें 29 मैटर्स हैं और इसको ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में. देन वी हैव आवर लास्ट वन. आवर लास्ट वन इज म्यूनिसिपैलिटीज. म्यूनिसिपैलिटीज वाज एडेड थ्रू 74th अमेंडमेंट. इसको 74th अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में ऐड किया गया था एंड इट हैज 18 मैटर्स. पंचायती राज में हमारे पास है 29 मैटर्स एंड इन म्यूनिसिपैलिटीज वी हैव 18 मैटर्स. म्यूनिसिपैलिटीज में है 18 मैटर्स. सो नाउ स्टार्ट ए क्विक रिवीजन. आवर फर्स्ट शेड्यूल इज लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड सेकंड वन इज लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स. थर्ड इज ओथ्स एंड अफर्मेशंस. फोर्थ इज allocation of seats in the Rajya Sabha, and fifth is administration and control of scheduled areas and tribes. Sixth is administration of tribal areas as like Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. And seventh is the union, state and co-current list of responsibilities. And the eighth is the languages. And the ninth is validation of certain acts and regulations. And 10th is anti-defection provisions for the members of parliament. And 11th is Panchayati Raj and 12th is municipalities. Means to say that हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ. सेकंड डील करता है सैलरीज के साथ, ऑफिशियल्स की जो सैलरी है उनके साथ. थर्ड डील करता है ऑफिसर्स की जो हमारे ओथ्स हैं उनके साथ. एंड फोर्थ डील करता है राज्यसभा में जो सीट्स हैं उनके एलोकेशन से. एंड फिफ्थ डील करता है शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड है. एंड सिक्स्थ डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन पर्टिकुलर एरियाज. यानी कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट इसमें ऐड कर दिए गए हैं एज लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. फिर हमारा जो 7 है वो डील करता है यूनियन, स्टेट एंड को-करंट लिस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज. 8 डील करता है लैंग्वेजेस यानी जो भाषाएं हैं. एंड देयर आर 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेज हैं जिनको इसके अंदर रखा गया है.
देन वी हैव आवर 9th, हमारा 9 डील करता है पर्टिकुलर एक्ट्स और रेगुलेशंस के साथ। 10 डील करता है एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस, जो कि पार्लियामेंट की मेंबर्स के लिए है। फिर हमारा 11 डील करता है पंचायती राज से। जो पंचायती राज है उसको ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। एंड हमारा लास्ट है म्यूनसिपलिटीज, जिसको ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट के थ्रू। एंड देर आर 18 मैटर्स, इसमें हमारे पास है 29 मैटर्स एंड म्यूनसिपलिटीज में है 18 मैटर्स। It's all for today. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe.